आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का मंगलवार एक सभा कर संगठन की शुरुआत की गई। पूर्व भाजपा कर्मी द्वारा पुलिस और मीडिया पर हमला। बुधवार रानीगंज वरोदो में रक्तदान शिविर का आयोजन। बिहार में भाजपा की जीत की खुशी में रानीगंज डॉल्फिन मैदान से एक रैली निकाली गई। रेलवे के निजीकरण के विरोध में इफ्टू ने रेल मंडल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक नगरी में C2INTTUC के पश्चात भाजपा से संबंध श्रमिक संगठन नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का मंगलवार के श्रमिक सभा कर संगठन की शुरुआत की गई। श्रमिक सभा के दौरान रानीगंज, अंडाल, दुर्गापुर एवं हावड़ा आदि से 400 से अधिक अन्य श्रमिक संगठन के लोगों ने नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन में योगदान दिया। रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक नगरी में C2INTTUC के पश्चात भाजपा से संबंध श्रमिक संगठन नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का मंगलवार एक श्रमिक सभा कर संगठन की शुरुआत की। इस मौके पर NFITU संगठन के राज्य अध्यक्ष ओमियो मुखर्जी, राज्य सचिव महेश दे, पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष देवाशीष राय, भाजपा के पश्चिम जिला अध्यक्ष लखन घुरई, रानीगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल, मदन त्रिवेदी, बादशाह चैटर्जी, गोपाल पारिक आदि उपस्थित थे। श्रमिक सभा के दौरान रानीगंज, अंडाल, दुर्गापुर, हावड़ा आदि से 400 से अधिक अन्य श्रमिक संगठन के लोगों ने नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन में योगदान दिया, जहां संगठन के नेताओं ने उन्हें संगठन का झंडा देकर शामिल किया। इस मौके पर लखन घुरई ने कहा कि 34 वर्षों तक CPM के C2 ने श्रमिकों का शोषण किया। এটা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী হিসাবে আমরা কখনো মেনে নিতে পারবো না। মানুষ যেটা করে খাওয়ার জায়গায়, মানুষের যেটা ভাতের ঘর, এই ভাতের ঘরের উপরে তৃণমূল কংগ্রেস ছাই দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের যারা মানুষ আছেন, যারা মেহনতি মানুষ আছেন, যারা বিভিন্ন কলে কারখানায় শ্রম বিক্রি করে যারা নিজের পরিবারের ভরণ পোষণ করতে পারেন, আজকে আমরা দাবি করছি ন্যূনতম মজুরি আমাদের সমস্ত কারখানার মধ্যে লাগু করতে হবে। আপনারা এটা জানেন না, মানুষের ন্যূনতম 2700 ক্যালোরি বেঁচে থাকার জন্য শরীরে থেকে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত NFITU এর রাজ্য সভাপতি, বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য মাননীয় অমিয় সরকার মহাশয়, জেলার রাজ্য সম্পাদক মানস দে, এই জেলার সভাপতি দেবাশিস রায় এবং প্রণাম জানাচ্ছি। বন্ধু, যে সংগঠনটা করতে এসছি তার নাম NFITU। আর যারা আমরা সংগঠন করতে এসছে ছাওয়ার পথে চলে গেছেন, ছাওয়া পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন, আর এই নির্বাচনের তৃণমূলের চোখে চোখ রেখে শ্রমিকের যে অন্যায় হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। তাই সকলকে আহ্বান করবো, ছাওয়াতে না বসে রোদে আসুন, রোদে এসে আন্দোলন করতে হবে। মানুষের জন্য আন্দোলন করতে আসছি আমরা, তাই ছাওয়া খোঁজার কোনো দরকার নেই। এখানে আসুন, আমাদের মূল্যবান বক্তব্য শুনবেন। এই আসানসোল সাংগঠনিক জেলায় যেভাবে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়েছে, CI2 মনে আছে আমাদের CPM সংগঠন, তারা কারখানা কেটে কেটে ঝান্ডা টাঙ্গিয়ে বলতো ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, দিতে হবে দিতে হবে, এই দিতে হবে করে পশ্চিমবঙ্গের এবং এই জেলার একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়েছে বন্ধু। আর টিএমসি আসার পরে সেই INTTUC, তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন, তারা এসে পরে একের পর এক তোলাবাজি করেছে, শ্রমিককে বঞ্চিত করেছে, মালিককে চমকিয়েছে। আর দিনের পর দিন শোষণের পরে আমাদের একের পর এক শিল্পাঞ্চলে কারখানা বন্ধ হয়েছে।
এই শিল্পাঞ্চলের জেলায় এই রানীগঞ্জ বেল্টে আমরা জানি এখানে যে আমাদের জুট মিল ছিল, সেই জুট মিল হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করতে বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধু, চিন্তার কোনো কারণ নেই। এই শিল্পাঞ্চলে হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। আজকে ইএসআই নেই, পিএফ নেই, প্রতি মুহূর্তে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আর মাত্র 6 মাস পর নির্বাচন। আর গতকাল দেখেছেন নির্বাচনে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, আমাদের রাজস্থান, মণিপুর উপনির্বাচন হয়েছে। সেখানে কংগ্রেস কেউ দলকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসছে। আর বিহার দেখেছেন সকালে যখন এখানে জোর লেগে যাচ্ছিল, দিদির কি চিন্তা, দিদির ভাইয়ের মাথা নেমে পড়েছে, তারা দই মাছ নিয়ে রাস্তা নেমে পড়েছে। আর তৃণমূল কোনো কিছুই নেই বিহারে, তারপরে তারা কিন্তু মিডিয়াতে বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে যাচ্ছেন। বিহারে ক্ষমতায় এসছে আমরা, 3 বার মুখ্যমন্ত্রী, 4 বারে মুখ্যমন্ত্রী হবে। তারপরেও বিহারে সমস্ত নেতারা কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিএম, আরজেডি সকলে মিলে বিজেপিকে হারাবার জন্য জোট করেছিল, এনডিকে হারানোর জোট করেছিল। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। মোদীজির উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গে আজও করেছে, তাই বিহারে নির্বাচন শেষ হয়েছে। আর কয়েক মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবে। আজ সেই নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতা আসবে, বাংলায় বিজেপি, কেন্দ্রে বিজেপি। আর তারপরে বাংলার সার্বিক উন্নতি হবে, এলাকায় শিল্পাঞ্চলের उन्नति হবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के तिलक रोड में रहने वाले एक महिला द्वारा मंगलवार रात अपने पड़ोसी द्वारा अत्याचार के विरोध में पुलिस को सूचना दी गई और मदद की गुहार लगाई। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को पूर्व भाजपा कर्मी दीपक शर्मा द्वारा हमला किया गया एवं साथ ही उन्होंने पहुंचे मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया। रानीगंज के तिलक रोड में रहने वाली एक महिला द्वारा मंगलवार रात अपने पड़ोसी द्वारा अत्याचार के विरोध में पुलिस के पास फोन कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पर पूर्व भाजपा कर्मी दीपक शर्मा द्वारा हमला किया गया। साथ ही साथ दीपक शर्मा द्वारा मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया। इस घटना में पुलिस द्वारा दीपक शर्मा, उसकी पत्नी सोनू शर्मा, पुत्र जीत शर्मा एवं प्रिंस शर्मा को गिरफ्तार कर आसनसोल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां उनकी जमानत नामंजूर करते हुए 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात तिलक रोड की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसके पड़ोसी दीपक शर्मा उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दीपक शर्मा उनके घर में घुसकर घर वालों को बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं एवं उनके साथ गंदा व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके गले की चेन भी छीन ली। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर दीपक शर्मा को रोकने की कोशिश की तो दीपक शर्मा ने लाठी, रड एवं पत्थरों से पुलिस पर हमला किया। इसकी सूचना मिलते ही तुरंत ही मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुंची, जहां दीपक शर्मा ने मीडिया कर्मी प्रसून चक्रवर्ती के साथ मारपीट करते हुए उनका कैमरा तोड़ डाला। আপনাকে পাশে প্রেসের লোক ছিলেন এবং প্রেসের লোক আসেন, একজন প্রেসের কর্মীও মার খেয়েছে, সম্ভবত তার ক্যামেরাটা ছিনতাই করে নিয়েছিল এবং ক্যামেরাটা ভেঙেও গেছে। আলোর অন্ধকার ছিল বলে ভালো বুঝতে পারিনি, তবে পরবর্তীতে জানা যাবে যে তার কী অবস্থা। তবে একজন প্রেসের কর্মী আমাদের সাথে আছেন যিনি আহত, হসপিটালে ভর্তি। এবং ঘটনাটা কি হয়েছিল স্যার? ঘটনাটা হয়েছিল, ওর নামে কমপ্লেন ছিল প্রতিবেশীদের। তো রাত্রেবেলা প্রতিবেশীরা অনেক 2-3 বার ফোন করে কমপ্লেন করেছে থানায়। আমরা এনকোয়ারি করতে যাই এবং এনকোয়ারি করতে যাওয়ার পর ওরা প্রথমে দরজা খুলছিল না, তারপরে দরজা খুলে যখন ঢোকা হয় তখন পুলিশ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওরা পুলিশকে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে এবং সেটা বোঝাতে বোঝাতে ওরা হাতাহাতির পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং ওরা মহিলা এবং বাড়ির সব পুরুষরা মিলে আমাদের মানে বোতল, ইট সব দিয়ে বিভিন্ন রকম দিয়ে মানে মারামারি শুরু করে। আমরা অনেক চেষ্টা করি বোঝানোর, কিন্তু কিছুতেই নয়। তারপরে কামড় দেয়, মহিলারা কামড় দেয় এবং মহিলা এবং একটা ছেলে এসে কামড় দেয় আমরা পড়ে যাই। ওখানে বিভিন্নভাবে বোতল, বিভিন্ন মদের বোতল, বিভিন্ন রকম জিনিস দিয়ে মারামারি শুরু করে। অন্ধকার ছিল, ভালো বুঝতে পারিনি। তারপর আর শুকুর থেকে ছিল এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি এরকমভাবে অ্যাটেকশন
ওরা প্রিপ্ল্যান ছিল এবং মানে ওরা রেডি হয়েছিল যে পুলিশ আসবে এবং পুলিশের প্রতি এই ধরনের একটা অ্যাগ্রেসিভ মেন্টালিটি নিয়েই ওরা রেডি হয়েছিল যে এই ধরনের আচরণ করবে আমাদের সাথে। আমার যতদূর মনে হলো আগে এনকোয়ারি করে দেখা যাবে। আপনার এই বিষয়টা দেখুন, পুলিশ কাছে এই বিষয়টা পুরো জানকারি আছে। পুলিশ আইনভাবে কাজ করবে। উনি যদি কিছু ভুল করে ফেলেছেন তো পুলিশ নিজে হিসাবে হস্তক্ষেপ করবে, পুলিশ ওকে শাস্তি দিবে। এটাতে পার্টির থেকে পার্টি আসেনি। দীপক স্যার উনি আগে এক্স মহিলা মোর্চার জেলার সেক্রেটারি ছিলেন, এখন বর্তমানে কোনো দায়িত্বতে নাই বলে দিই। আর যদি কেউ এরকম কিছু কাজ করে, ওর সঙ্গে বিজেপির কিছু লেনা দেনা নাই, ঠিক আছে? তবু आईने हिसाब काज करवे। जो किसी भूल करे तो निश्चय और सजा पावे। अच्छा, देखा का पूरा जानकारी हमको नहीं है, ठीक ना। और इस विषय की जानकारी लेके जैसा होता है हम देखते हैं। सुनने में आया है कि सोना शर्मा का हस्बैंड जो है वो कोई पत्रकार थे, उनका कैमरा तोड़े। तो सोना शर्मा का हस्बैंड का जो है ना पार्टी से दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना वास्ता नहीं। और कोई भी अगर ऐसा घटना करता है तो पुलिस उसके लिए सक्षम है, पुलिस अपने हिसाब से उसको सजा देगी। कानून है, कानून व्यवस्था है। इस विषय में हम क्या कहते हैं, इसका तो मतलब बात का हम सीरियस ही नहीं लेते हैं। कारण क्या है कि ग्रुपबाजी, गुंडागर्दी ये उन लोगों के मुंह से बोला हुआ दूसरे दल को शोभा नहीं देता है। और आप मैंने क्या बोलते हैं कि अपना गिरमान खुद झांक के देखें, उसके बाद दूसरे को नसीहत देंगे। हम लोगों की पार्टी जो है इस तरह के व्यक्तित्व और इस तरह के विचार वाले को कभी साथ में लेके चलने का प्रयास नहीं करती और ना चलेगी। अगर इस तरह का घटना में अगर वो लिप्त हैं, पार्टी से पहला बात तो उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ना कोई पद में है, ना कोई कार्यकर्ता है। समर्थक अगर होंगे तो हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूरे विश्व में समर्थक हैं, तो इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। गतकाल रात्रि दीपक शर्मा बोले एकजन बीजेपी गुंडा तीनजन पुलिस अफिसारे गाয়ে हाथ तुलेন। ওই দীপক শর্মার সাথে তার পাশের বাড়ির একটা ঝামেলা সৃষ্টি হয়। পাশের বাড়ির লোকজনরা যখন পুলিশকে খবর দেয়, সেই শুনে পুলিশ যায়। তারপর তারা পরিবার সহ পুলিশকে আক্রমণ করে। আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি এবং রানীগঞ্জ আইসি সহ পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে এবং উপযুক্ত শাস্তি ব্যবস্থা করতে। আমরা পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তথা রানীগঞ্জ বড়োর মধ্যে এমন কোনো গুন্ডামি করতে দেবো না বিজেপিকে, যাতে আইন তারা নিজের হাতে তুলে নেয়। আগামী দিনে এরা যেরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে, যে জনরোষ আশ্রয় পড়বে, তখন কিন্তু এদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তাই বারবার বলছি, গুন্ডামি করবেন না, রাজনৈতিকভাবে লড়াই করুন। আর পুলিশকে মেরে, বিডিওকে, এসডিও, ডিএমকে মেরে আপনাদের যে কালচার, সেটা সারা পশ্চিমবাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষে আপনারা দেখাচ্ছেন। উত্তরপ্রদেশ তারও দৃষ্টান্ত। সতর্ক হয়ে যান, প্রশাসনকে মান্যতা দেন আর ভদ্রভাবে রাজনৈতিক দল করুন। যাতে মানুষ যদি গ্রহণ করে তাহলে মানুষ আমাদের গ্রহণ করবেন, কিন্তু মানুষের যদি জনরোষ রাস্তায় চলে আসে তাহলে আপনারা কিন্তু কেউ বাঁচতে পারবেন না। নিন্দা করছি, সাংবাদিক লোকদের মেরেছে নিন্দা করছি, পুলিশে গায়ে হাত দিয়েছি নিন্দা করছি এবং কঠোর শাস্তির দাবি করছি। কঠোর শাস্তির দাবি পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি যে এই ধরনের ব্যক্তিদের যেন বাইরে না থাকে। এরা পাশের বাড়ির লোককে যখন এরা সম্মান দিতে জানে না, তো এরা বিজেপির নেতৃত্ব কি দেবে? ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज़। पश्चिम बर्धमान जिला में रक्त की कमी को देखते हुए मेयर जितेंद्र तिवारी द्वारा सभी बोरों में रक्तदान शिविर करने का आदेश दिया गया। इसी क्रम में बुधवार रानीगंज बोरो 2 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कुल 34 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। पश्चिम बर्धमान जिला में रक्त की कमी को देखते हुए मेयर जितेंद्र तिवारी द्वारा सभी बोरों में रक्तदान शिविर करने का आदेश दिया गया। इस योजना के तहत प्रत्येक बोरों में कुल 100 यूनिट रक्त संग्रह करने का संकल्प लिया गया एवं इसी क्रम में बुधवार रानीगंज बोरो 2 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कुल 34 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर बोरो 2 के एडमिनिस्ट्रेटर पूर्ण शशि राय, पूर्व चेयरमैन संगीता सारदा, कुल्टी के एडमिनिस्ट्रेटर दीपेंदु भगत, पूर्व शहर अध्यक्ष आलोक भोस, खुर्शीद आलम, बोरो 2 के इंजीनियर इंद्रजीत कोनार, आरपी खैतान, प्रदीप बाजोड़िया एवं संदीप बाजोड़िया संघ अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আসানসোল পৌর নিগমের যেদিন মেয়াদ শেষ হয়, যেদিন আমরা মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারি মুখ্য প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আসানসোল পৌর নিগমে, ওই দিন আমরা যারা সদস্য প্রশাসকবৃন্দ রয়েছি 9 জন, উনি একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন
যে আমাদের জেলা হাসপাতাল সহ বিভিন্ন জায়গায় রক্ত সংকট রয়েছে। তো প্রাথমিকভাবে উনি ওই দিনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে আমাদের কর্পোরেশন এলাকায় যে 10টি বড়ো রয়েছে সেই 10টি বড়োতেই প্রতিটা বড়োর পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির করা হবে। ইতিমধ্যে আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের 7 এবং 5 নম্বর বড়ো আমরা রক্তদান শিবির করেছি। আজকে 11 তারিখ 2 নম্বর বড়ো রানীগঞ্জ বড়ো অফিসে হচ্ছে। আমাদের যিনি মুখ্য প্রশাসক জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি মহাশয় কয়েকদিনের মধ্যে এই মাসের মধ্যেই আসানসোলে একটা মেগা রক্তদান শিবির করছেন, যেখানে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা ছাড়াও আমরা অন্যান্য জেলাতেও রক্ত সংগ্রহ করে সেখানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। প্রায় 5000 মানুষের উনি একটা শিবির করছেন। রক্তের খুব সংকট। আমরা রানীগঞ্জ বড়োর যারা নাগরিকবৃন্দ তাদের কাছে আবেদন করেছি যে আসুন রক্ত দিয়ে এই সংকট থেকে আমরা সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিই এবং যাতে তাদের জীবনদান হয় আপনাদের সহযোগিতা। 100 ইউনিট টার্গেট রেখেছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बिहार विधानसभा निर्वाचन के दौरान भाजपा के पक्ष में फल निकलते ही भाजपा कर्मियों में खुशी की लहर दिखी तथा देश भर में भाजपा समर्थक इस खुशी को मना रहे हैं। इसी क्रम में रानीगंज डॉल्फिन मैदान से एक रैली निकाली गई। बिहार विधानसभा निर्वाचन के दौरान भाजपा के पक्ष में फल निकलते ही भाजपा कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई तथा देश भर में भाजपा समर्थक इसकी खुशी को मना रहे हैं। इसी क्रम में रानीगंज के डॉल्फिन मैदान से शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। इस दौरान भाजपा कर्मियों में खुशी की लहर देखी गई एवं रैली के दौरान भाजपा समर्थकों ने झंडा लहराते हुए अबीर खेला एवं डंडा बजाकर रैली निकाली। साथ ही साथ भाजपा कर्मियों ने बड़ी काली मंदिर तथा रक्षा काली मंदिर में मां काली की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर राजेश मंडल के अलावा मदन त्रिवेदी, गोपाल पारिक, नमिता साव, शताब्दी चैटर्जी एवं अन्य भाजपा समर्थक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर आसनसोल ग्रामीण मंडल 4 की ओर से संदीप गुप्त के नेतृत्व में भाजपा कर्मियों द्वारा रैली निकाली गई, जो विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए बल्लभपुर आउटपोस्ट के समक्ष जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर संदीप गुप्त के अलावा बानी चक्रवर्ती, संजय यादव एवं अन्य भाजपा कर्मी व समर्थक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो अप्रत्याशित था। पूरे बिहार की जनता ने भारतवर्ष को ये संदेश दे दिया कि अब ना कोई परिवारवाद ना वंशवाद चलना है, विकास की राजनीति होनी है और पूरा देश मोदी जी के साथ है। इस बार कल तो बिहार जीते हैं, अब की बारी बंगाल है और कहे ना कल हमारे योगी जी कि मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। इस बार 2021 में बंगाल में हम लोग आ रहे हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रेलवे के निजीकरण किए जाने के विरोध में बुधवार इफ्टू ने आसनसोल रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रेल मंडल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें रेलवे के निजीकरण न करने, भाड़ा न बढ़ाने और सभी ट्रेनों को अविलंब शुरू करने की मांग की गई। रेलवे को निजीकरण किए जाने के विरोध में बुधवार इफ्टू ने आसनसोल रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रेल मंडल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें रेल को निजीकरण नहीं करने, भाड़ा नहीं बढ़ाने और सभी ट्रेनों को अविलंब खोलने की मांग की गई। इस मौके पर इफ्टू के नेता उमेश साव ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे को निजीकरण कर रही है, भाड़े में बढ़ोतरी कर रही है, जिसका उनका संगठन तीव्र प्रतिवाद कर रही है।
रेलवे को निजीकरण करना नहीं चलेगा, भाड़ा में भी बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के दौरान तालाबंदी के बाद जिन सभी नियमित ट्रेनों को बंद की गई है उसे अविलंब परिचालन किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर बुधवार इफ्टू की तरफ से आसनसोल डीआरएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर डीआरएम को ज्ञापन सौंपा गया। वाइट लेना पड़ेगा, दूसरे ना थोड़ा लास्ट में बराबर आगे चले जाना, आगे फंका आगे चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार शाम आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीनियर कार्डियो कंसल्टेंट डॉक्टर कुणाल सरकार ने बताया कि आईक्यू सिटी हॉस्पिटल के साथ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता से जॉइंट वेंचर में एक नई पद्धति लाकर काम करने जा रही है। बुधवार शाम आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीनियर कार्डियो कंसल्टेंट डॉक्टर कुणाल सरकार ने बताया कि आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के साथ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता से जॉइंट वेंचर में एक नई पद्धति लाकर काम करने जा रही है, जिसमें कार्डियोलॉजी के साथ कार्डियो सर्जरी की जाएगी और बताया कि नियमित तरीके से आउटडोर की जाएगी, जहां कैथ लैब, बाईपास सर्जरी, शिशु की हार्ट की चिकित्सा के साथ ऑपरेशन के अलावा विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन यहां किए जाएंगे। डॉक्टर कुणाल सरकार ने बताया कि दुर्गापुर शहर में कुछ अस्पताल अच्छे काम कर रहे हैं। इसके अलावा और कहा कि मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता में जिस तरह से काम करती है, जैसे एडवांस कैथ लैब, हार्ट ट्रांसफर आदि ऑपरेशन यहां किया जाएगा एकदम नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, और कहा कि दुर्गापुर शहर के लोगों के साथ बाहर के भी लोग यहां ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं। Invoking the blessings of the God Almighty, the blessings of our respected Chairman Sir Shri Sanjay Jhunjhunwala. दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार सुबह साबुन बनाने के रसायन तेल से लदा एक टैंकर जो हल्दिया से राजस्थान जा रही थी, जामुड़िया थाना अंतर्गत गोविंद नगर मोड़ पर बुधवार सुबह टैंकर असंतुलित होकर पलट गई, जिसके कारण नेशनल हाईवे में सुबह से ही जाम की समस्या बनी रही। बुधवार सुबह साबुन बनाने के रसायन तेल से लदा एक ट्रैक्टर जो हल्दिया से राजस्थान जा रही थी, जामुड़िया थाना अंतर्गत गोविंद नगर मोड़ पर बुधवार सुबह असंतुलित होकर पलट गई, जिससे ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त होकर उसमें लदा रसायन सड़क पर बिखर गया, जिसके बाद स्थानीय लोग उसे डालडा समझकर रसायन की लूट मचाने लगे। रसायन तेल पूरे सड़क पर बिखरने के कारण कई बाइक सवार स्लिप कर सड़क पर गिर गया, जिससे कई बाइक सवार घायल हो गए। सुबह से ही नेशनल हाईवे पूरे दिन जाम रहा, जिसमें आम लोगों को काफी परेशानी हुई। दुर्घटना की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति संभाली। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर रसायन तेल को सड़क से हटाने की जद्दोजहद में लगे रहे। पुलिस और NH2 के कर्मी सड़क पर डस्ट व बालू गिराकर फिसलन को मिटाया। इस दुर्घटना से सुबह से लेकर शाम तक काली पहाड़ी मोड़ से लेकर चांदा मोड़ तक सड़क पूरी तरह से जाम रही। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी? क्या वही बस थे वहाँ छोड़ दिए, बस खड़ा है। क्या बोला बस वाला? बस वाला कुछ नहीं बोला, हम उतर के चल गए। अच्छा, अभी क्या हुआ यहाँ पर देख रहे हैं? हाँ, क्या हुआ? वही एक्सीडेंट हुआ है। हमको आसनसोल जाना था। अच्छा, अभी क्या देख रहे हैं? अभी तो देख रहे हैं तेल वाला गाड़ी पलटी हुआ है। हाँ जी हाँ। तो अभी आपको क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत बस का दिक्कत हो रहा है। हमको तो देवघर जाना है, तो बस का प्रॉब्लम हो गया, फिर हम कैसे निकलेंगे उसके लिए। तो ये कितना देर से खड़ा है? बहुत देर से खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्लिम अंसारी। एगो गाड़ी का पलटी मार दिया, तेल का गाड़ी। तो हम लोग काम में जा रहे थे,
बेकार लड़का है, दिन मजदूरी काम करते हैं, यहाँ गाड़ी का पलटी मिल गया, मार दिया और काम मिलेगा हम लोग को? नहीं मिलेगा। यही समस्या है हम लोग का। कितना देर से खड़ा है? 2 घंटे से। यहाँ टाइम भी हो गया, हम 8 बजे पहुँचने पड़ता है, 8 बजे के बाद काम नहीं मिलेगा। आपका नाम? अली मोहम्मद खान। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आसनसोल राइफल्स क्लब के आधुनिक स्कोरिंग सिस्टम की चर्चा राज्य सहित पूरे देश में पहुंच चुकी है। इसे लेकर क्रीड़ा जगत के लोग इस सिस्टम को देखने के लिए आतुर हैं और देखने के बाद सराहना भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में निशानेबाजी के लिए ऐसा सिस्टम और व्यवस्था कहीं नहीं है। आसनसोल राइफल्स क्लब के आधुनिक स्कोरिंग सिस्टम की चर्चा राज्य सहित पूरे देश में पहुंच चुकी है। इसे लेकर क्रीड़ा जगत के लोग इस सिस्टम को देखने के लिए आतुर हैं और देखने के बाद सराहना भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में निशानेबाजी के लिए ऐसा सिस्टम और व्यवस्था नहीं है कहीं। इसी के मद्देनजर बुधवार राज्य के क्रीड़ा विभाग के प्रधान सचिव वरुण राय ने बुधवार आसनसोल राइफल्स का दौरा किया। क्लब पदाधिकारियों ने क्लब में लगाए गए आधुनिक स्कोरिंग सिस्टम को दिखाया। प्रधान सचिव वरुण राय ने राइफल्स क्लब की सराहना की। वेस्ट बंगाल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके ढल के नेतृत्व में राइफल्स क्लब के विकास के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा की। वीके ढल ने बताया कि शूटरों को अब अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलेगा। शूटिंग करने के साथ ही शूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनका लक्ष्य सही लगा है कि नहीं। बंगाल के अलावा देश में इतना बेहतर शूटिंग स्थल कहीं नहीं है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आसनसोल राइफल क्लब का मैंने देखा, there are lot of improvements that have been done in this range, and we'll have a discussion with the officials of the club and we'll see how the sport can be promoted here in Asansol and for the rest of the state. Thank you. हिंदी तो आसनसोल राइफल क्लब में हम लोग बहुत सौभाग्यपूर्ण है कि आज हम लोग के बीच में श्री वरुण राय IAS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज पश्चिम बंगाल सरकार से आए हुए हैं हमारी राइफल क्लब की रेंज देखने के लिए। उनको हम लोग ने रिक्वेस्ट भी किया है कि सरकार की तरफ से भी हमें कुछ अगर मदद करें तो हम लोग इस रेंज को और भी डेवलप करें, और हमने फ्यूचर प्रोग्राम भी उनको बताए हैं कि हमारे राइफल क्लब में हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या किया है और आगे हम लोग का डेवलपमेंट में क्या प्रोग्राम है। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम अपना वापस जा करके अपने दफ्तर में देखेंगे, जो हम लोग से बन पाएगा वो हम लोग बिल्कुल आपके लिए करेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। बराकर चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा चेंबर के कार्यालय में श्री मित्रा एवं SP शांति व्रत चंद्र के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत के साथ किया गया। मैं आभार व्यक्त करता हूं उन्हें कि उन्होंने लोगों को संयम बरतना सिखाया। मैं आभार व्यक्त करता हूं उन्हें कि उनके नेतृत्व में बराकर शहर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए CCTV कैमरा लगाए। কমার্সের যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের মনে করে যে আমি মনে করি সেটা হচ্ছে যে বরাকর ফাঁড়িতে যে সুন্দর যে CCTV লাগানো হয়েছে, যার ফলে যে বরাকর ফাঁড়িতে এখন সমস্ত যে বাজার এলাকা সমস্ত জায়গায় আমরা ফাঁড়িতে বসেই দেখতে পাই, এবং এই যে বড়বাবু আছে রবীন্দ্রনাথ দলুই, ওর হাতেই সমস্ত মোবাইলেই সমস্ত কিছু দেখা যায়। এই কারণে বরাকর চেম্বার অফ কমার্স
কে আমরা বারবারই ধন্যবাদ জানিয়েছি এবং পার্টিকুলারলি আমি এবং আমাদের সাহেবরা প্রত্যেকে বড়াকড়া চেম্বার অফ কমার্সের কাছে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আপনারা এটা একটা বড়াকড়ের স্বার্থে কাজ করেছেন। বাকি তো আমরা চাকরি জীবনে আসি এসে চলে যাই, এটা আমার दोनों का जो तबादला इनका हो गया है, एबीसीपी वेस्ट को 4 साल 3 महीने के आसपास हम लोगों के एरिया में इनको रहते हुए हो गया है और एक तरह से तो इनके 20 जन का पारिवारिक संबंध का ऐसा हो गया है कि अगले दिन यहाँ से जाते हैं तो क्या खड़ेगा, कितना खराब होगा, कहना मुश्किल है। শুনবে তাদেরকে আমরা তাদের সাথে আমরা যদি ইন্টারঅ্যাক্ট করি, তাদের থ্রু দিয়ে যদি সমাজের মধ্যে যাই, তাহলে আমাদের কাজ যেটা সেটা অনেকটা হেল্পফুল হবে। আমরা অনেক আমাদের যে ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করার যে কাজ সেটা আমরা ভালো করে করতে পারব। তো তার জন্য আমি বড়াকড়া চেম্বার অফ কমার্সের প্রথম থেকে সহযোগিতা পেয়ে এসেছি। আমার মনে আছে যে 4 বছর আগে আমি যখন অ্যাজ এডিসি জয়েন করি, তখনও আমাকে চেম্বার অফ কমার্স থেকে একটা সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। তো আমার মনে আছে সেটা, তখন আমি হয়তো 3-4 দিন হলো জয়েন করেছি। তখনই আমাকে সিপিজি বলেছিলেন যে আপনি সমস্ত রকম সহযোগিতা আমাদের কাছ থেকে পাবেন, এটা আমি আজকেই বলে দিলাম। তো আমার আজকে 4 বছর 3 মাস প্রায় হয়ে গেছে। সেই সহযোগিতার ধারা কিন্তু অব্যাহত এবং কোনোদিন সেটা থামেনি। যে কোনো ব্যাপারে আপনাদের কাছে একবার যদি পৌঁছে গিয়েছি, আপনারা দুহাত তুলে দিয়েছেন। সেটা আমি যেটা আমার এসিপি বললো যে সিসিটিভি, আমি সিপিজিকে বলেছিলাম যে বরাকরের মতো কনজেস্টেড এরিয়ায় যেখানে এত বিজনেস কমিউনিটি, এত দোকান, এত টাকার লেনদেন হচ্ছে, সেখানে আমরা সামান্য কয়েকটা সিসিটিভি যদি লাগাই, আমাদের ক্রাইম প্রিভেনশন তো একটা ভালোভাবে করা যাবে। আপনারা জেনে খুশি হবে যে একটা ক্রাইম আমরা শুধু সিসিটিভির সাহায্যেই ধরেছি। একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, একটা টাকার বান্ডিল কেউ উঠে নিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ি ওটা ছেলেটিকে আইডেন্টিফাই করে এবং ছেলেটিকে পরে অ্যারেস্ট হয়েছে এবং টাকাও রিকভারি করা গেছে, বিজনেসম্যানেরই টাকা। তো এই সিসিটিভির জন্য আপনাদের তো একটা বড় ধন্যবাদ প্রাপ্যই। তার সাথে আমি দৌড়িকে বলবো যে দৌড়ি এটা পেছনে লেগে থেকে পার্সু করে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওটা করেছে, তার একটা বড় ক্রেডিট ওর কাছেও, ওর দিকে যাওয়া উচিত। আর এই সিসিটিভিটা এটা শুধু মানে পুলিশের জন্য না, এটা আপনাদের সেফটি আর সিকিউরিটির জন্য। এখানে আমি তো বললাম এটা একদমই বর্ডারিং এলাকা, ঝাড়খণ্ডের প্রচুর লোক ঝাড়খণ্ডের এখানে ঢোকে, মানে আমার তো মনে হয় 20 যা লোক আছে তাতে आगे जाएंगे मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी
भी होती है। यहाँ पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तृणमूल अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बुधवार आसनसोल आश्रम मोड़ स्थित तृणमूल कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं ने संवाददाताओं को संबोधित किया। तृणमूल अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बुधवार आसनसोल आश्रम मोड़ स्थित तृणमूल कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के नेता आसनसोल नगर निगम के लीगल सेल के सलाहकार रबीउल इस्लाम, पूर्व पार्षद वसीम उल हक, हाजी नसीम अंसारी, गुड्डू अंसारी, पूर्व चेयरमैन गुलाम सरवर ने संवाददाताओं को संबोधित किया। सर्वप्रथम उपस्थित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की 132वीं जयंती पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित किए। इसके पश्चात सर्वप्रथम रबीउल इस्लाम ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ की हैं एवं हम लोग उन पर पूरा भरोसा करते हैं और वह भी हमारा भरपूर ख्याल रखती हैं। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस माननीय सेक्रेटरी चेयरमैन गुलाम सरवर जी को बोलेंगे। अमीन साहब। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा नगर निगम के प्रशासक का रातों रात हुए तबादले को लेकर तृणमूल के भीतर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई। बांकुड़ा नगर पालिका के नगर निगम प्रशासक को रातों रात बदलने के केंद्र में जमीनी स्तर पर मजबूत राजनीति अफवाहें शुरू हो गई है। तो स्वाभाविक प्रक्रिया। আমি সরকার মনোনীত বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরসের চেয়ারপারসন ছিলাম। আমি সরকার মনে করেছি যে উপযুক্ত, আমার চেয়ে উপযুক্ত কাউকে হয়তো এখানে দিলে ভালো হয় এবং যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি হয়তো আমার চেয়ে বেশি উপযুক্ত, তাই তাকে দায়িত্ব দিয়েছে। কেন সরানো হলো? না, দেখুন, এটা তো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আমি তো বলেইছি আমার সবচেয়ে বড় অহংকার, সবচেয়ে গর্ব যে আমার বোর্ড দক্ষিণপন্থী যে কোনো দলে, শুধু তৃণমূল নয়, কংগ্রেস তৃণমূল যে কোনো বোর্ডের মধ্যে আমার বোর্ড সবচেয়ে প্রথম, যার বিরুদ্ধে কোনো অনাস্থা আসেনি। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট যে আমি সবাইকে নিয়ে চলতে পেরেছিলাম বলেই আমার বোর্ড সুষ্ঠুভাবে চলেছিল 5 বছর, কোনো রকম ডিস্টারবেন্সের মধ্যে আমার পড়তে হয়নি এবং আমি সুষ্ঠুভাবে চালাতে পেরেছিলাম বলেই সরকার বা মুখ্যমন্ত্রী দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। আমি একজন দলের কর্মী হিসাবে যে দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়িত্ব আমি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব এবং আগামী দিনে যে বিধানসভা নির্বাচন বা পৌরসভা নির্বাচন আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব দলকে সেই জায়গাটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। সেটা দলের ব্যাপার, দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখানে আমি কিছু বলতে পারবো না। দেখুন, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা হচ্ছে সবথেকে বড় দায়িত্ব।
আমি 1 থেকে 24টা ওয়ার্ডে প্রত্যেকটি মানুষ এবং আমাদের দলের যারা কর্মী আছে তাদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করব, মানুষের যে অভাব অভিযোগ আছে সেগুলো শুনব এবং আপ্রাণ চেষ্টা করব মানুষের কাজ করার জন্য। প্রথমেই বলেছি যে আমার 1 থেকে 24টা ওয়ার্ডে আমার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে এবং মানুষের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখব। দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখানে তো আমার আর কিছু বলার নেই, এটা পুরোটাই দলের ব্যাপার। দেখুন আমি এখানে কিছুই বলবো না, পুরোটাই দল। সেটা দলের সিদ্ধান্ত। আমি প্রথমেই বলেছি এটা দলের সিদ্ধান্ত, দলের সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিয়েছি। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव परिणाम बुधवार शाम आ गया। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के 2020-22 के चुनाव में जीत दर्ज कर नरेश अग्रवाल एक बार फिर से अध्यक्ष तथा शंभुनाथ झा महासचिव पद पर आसीन हुए। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव परिणाम बुधवार शाम आ गया। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के 2020-22 के चुनाव में जीत दर्ज कर नरेश अग्रवाल एक बार फिर से अध्यक्ष तथा शंभुनाथ झा महासचिव के पद पर आसीन हुए। नरेश अग्रवाल को कुल 201 वोट मिले तथा शंभुनाथ झा को कुल 208 वोट। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर ओम प्रकाश बगाड़िया को 206 वोट, उपाध्यक्ष के पद पर विनोद कुमार गुप्ता को 204 वोट एवं सतपाल सिंह कीर उर्फ पिंकी को 231 वोट। संयुक्त सचिव के पद पर विनय शर्मा को 237 एवं सुनीत दास को 192 वोट, कोषाध्यक्ष के पद पर आलोक कुमार धर को 202 वोट, संयुक्त कोषाध्यक्ष के पद पर संतोष दत्ता को 229 वोट प्राप्त हुए। 22 कार्यकारिणी सदस्यों में मुकेश तोदी, सुब्रतो चैटर्जी, हर्ष खंडेलवाल, सुदीप अग्रवाल, निरंजन अग्रवाल, गौरी शंकर अग्रवाल, सुनील कुमार मुकीम, शंकर शर्मा, हरिनारायण अग्रवाल, जिग्नेश पटेल, विनोद केडिया, अशोक अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, विशाल गुप्ता, अभय बर्णवाल, सी मुरली, राजू अग्रवाल, सुनील सोनकर, अजय साहा, अजय गुप्ता, दिनेश पोद्दार, सुनील कुमार एवं अमित अग्रवाल ने जीत दर्ज की। आपको बता दें कि काफी विवाद के बाद मंगलवार आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हुआ। पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन जगदीश प्रसाद केडिया के नेतृत्व में हुआ। जगदीश बागड़ी एवं सतीश सेठ ने इसमें सहयोग दिया। चुनाव में कुल 534 सदस्यों में से 355 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार में जो तोलाबाज लोग हैं, जो लोग तोलाबाजी कर रहा है, शंभुजा उसके लिए मैदान में खड़ा होकर ऐलान करेगा और बिजनेसमैन का तोलाबाजी बंद कराएगा। बाजार में तोलाबाजी बंद कराएगा। वैसा ऐसा पिंटू गुप्ता शंभुजा पॉकेट में रखता है। लक्ष्य क्या है? जीत का बाद एक ही लक्ष्य है कि एकल व्यापारी जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका समस्या शिविर लगा करके मेरे को सुनना है। हर एक महीने में एक छोटा छोटा, जैसे बाकड़ लेन है, NS रोड है, नेताजी सुभाष रोड है, बर्नपुर है, जमुड़िया है, ये सभी जगह शिविर लगा करके उनका समस्या को सुनूंगा। क्योंकि एकल व्यापारी जो है उसके पास समय नहीं रहता है, वो अपने फैमिली को टाइम दे, न डॉक्टर पास जाए न कार्यालय जाए। इसलिए उन लोगों को मैं चाहूँगा, और ये जैसे ट्रेड लाइसेंस का समस्या है, GST का है, अगर मैं चाहूँगा अधिकारी को बुला करके वहीं पे स्पॉट समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद। में दिखला दिया है कि क्या काम होता है। किसका टीम? और ये जान लीजिए, आज ऐलान करते हैं कि ये असत्य के ऊपर सत्य की जीत है। ये असत्य के ऊपर सत्य की जीत है और सारे सदस्यों का आभार प्रकट करते हैं। और मैं आज चैलेंज करता हूं 2022-2024 में भी शंभू झा सेक्रेटरी के लिए खड़ा होगा। जादव जी एंड टीम को आज से ऐलान कर दीजिए कि उसका तैयारी आज से कर दे। प्रेसिडेंट नहीं बनेगा क्या? आज से मैं झा जी अभी अगला बार ओम बगड़िया को प्रेसिडेंट और शंभू झा सेक्रेटरी रहेगा। जादव जी एंड टीम को ऐलान कीजिए कि आज से हमारे विरोधी में टीम तैयार करें हम लोगों को हराने के लिए। अच्छा, रंगा बिल्ला का टीम सक्सेस हुआ क्या? आज बाजार में जो बुरी तरह हार हुई है उनकी, आज जो बुरी तरह हार के मैदान से भागे हैं वो लोग मुंह दिखाने के लिए कहीं काबिल नहीं रह गए। और इसलिए हम लोगों ने इलेक्शन से पहले एक शब्द भी नहीं कहा कि इसका जनगण, इसका जो है गरम हो गया, ठंडा। मैं सबसे पहले एक सेकंड साइलेंट।
मैं सबसे पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर श्री जगदीश केडिया जी, सतीश सेठ, जगदीश बागड़ी जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आज तक चंबल क्लास में आज तक चैम्बर के इतिहास में ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिस प्रकार केडिया जी ने, सतीश जी ने और बागड़ी जी को दिखाया। मैं सब मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आशीष को देना चाहता हूँ। मेरे ऊपर तो बहुत ब्लेम लगाए गए थे, मैंने बिल्डिंग बेच दी है, मीडिया वालों के थ्रू मेरा बहुत ब्लेम किया गया था, लेकिन दिखा दिया ओम बागड़िया को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और मैं 206 अपने 355 वोटरों को धन्यवाद देता हूँ कि 206 मेरे को वोट मिले हैं। आज मेरे अगेंस्ट पे मेरे चाचा खड़े हुए थे, वो नहीं होते तो मैं दिखा था 355 वोट लेकर आता मैं। थैंक यू। लेकिन फिर भी एक चीज बोलूंगा, जिस प्रकार से बदनाम किया गया हम लोगों को, रंगा बिल्ला को बदनाम किया गया, सारी दुनिया पीछे पड़ी, सारे हमारे नहीं बोलते हैं। मैं तो आपको बोल दिया ओम प्रकाश बागड़िया को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैं अपने 355 मेंबर सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो मेरे लिए। कल मैंने ऐसा भी देखा, ताली बजाओ, ताली ठोको। कल मैंने ऐसा भी देखा जो चैम्बर में नीचे से मन बना गया थे वोट देने के लिए, वोट देने के लिए मन बना गया थे कि हमको फलाना को देना है, फलाना को देना है। वो चैम्बर में आके देखा, चैम्बर का इतिहास बदल दिया, वोट करके चले गए। आज तक इतिहास में ऐसा काम नहीं हुआ। काम करने वाले बदनाम होते हैं, काम करने वाले बदनाम होते हैं। आज मेरे साथ सोहन बासु, शंभू झा और हमारे ट्रेजर राजू अग्रवाल ने जो साथ दिया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और एक चीज बता दो, 7 क्रॉस नहीं, मेरे पिताजी कहते हैं 7 क्रॉस नहीं। एक सेकंड जगदीश भैया, मिठाई लेना अपने पीछे। इसके लिए हम मेरा मेंबर को, मेरा प्रेस को, सबको धन्यवाद देते हैं सबसे पहले। और उसके बाद अब हम जो है जो आदमी ऑफिस बेरर का अभी हम लोग सर्टिफिकेट दे रहा है, बाकी कमेटी का सर्टिफिकेट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को बोलेंगे, वो लोग दे देगा, हम सही कर दिया है। तो अभी सबसे पहले हम संतोष दत्ता को बुलाएंगे, जॉइंट ट्रेजरी, और उनका साथ जो थे प्रबोध सेन, उनको मिला 108 वोट। प्रेसिडेंट नरेश अग्रवाला 201 वोट से डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। सचिंद्र नाथ राय डिफीटेड 145 वोट। ओम प्रकाश बागड़िया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड इलेक्टेड 206 वोट। रविंद्र पसारी 75 डिफीटेड। महावीर प्रसाद शर्मा 54 डिफीटेड। वाइस प्रेसिडेंट में 2 आदमी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। सतपाल सिंह खीट 231 डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। विनोद कुमार गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट 204 डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। सुजीत सिंह मक्कर वाइस प्रेसिडेंट में 117 से डिफीटेड। ओनी सेक्रेटरी में शंभूनाथ झा 208 वोट डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। दयानंद प्रसाद डिफीटेड 132 वोट। जॉइंट सेक्रेटरी 2 वोट डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। विनय कुमार शर्मा 237 डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। सुनीत कुमार दास जॉइंट सेक्रेटरी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड 192। मोहम्मद इम्तियाज आलम डिफीटेड 118 वोट। ट्रेजर में आलोक कुमार धार 202 वोट डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। विश्व रंजन दास गुप्ता डिफीटेड 130 वोट। जॉइंट ट्रेजरर संतोष दत्ता 229 डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। प्रमोद सेन डिफीटेड 108। और कमेटी के तो आप लोग को दे ही दिया था, हमको तो मिल गया, इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, बोल देंगे। अच्छा, जो डिक्लेयर्ड हुआ है, गौरी शंकर अग्रवाल 256, मुकेश टोरी 256, निरंजन अग्रवाल 256, सुनील कुमार मुकीम 239, राजू अग्रवाल 238, जिग्नेश पटेल 233, हरिनारायण अग्रवाल 231, शंकरलाल शर्मा 228, सत्यनारायण अग्रवाल 227,
अभय कुमार बर्नवाल 223, अशोक अग्रवाल 220, विनोद कुमार केडिया 218, हर्ष खंडेवाल 218, सी शंकर नारायण 212, दिनेश पोद्दार 211, अमित अग्रवाल 208, विशाल गुप्ता 185, सुब्रतो चटर्जी 180, सुदीप अग्रवाल 176, सुनील कुमार सोनकर 167, अजय कुमार गुप्ता 162, अजय कुमार शाह 162. All are declared elected. डिफीटेड का नाम बोल रहे हैं. राजा सिंह 144 डिफीटेड, शंकर कुमार तिवारी 141 डिफीटेड, प्रदीप कुमार बर्नवाल 133 डिफीटेड, अरुण कुमार गुप्ता 132 डिफीटेड, ओम प्रकाश गुप्ता 125 डिफीटेड, दिनेश प्रसाद 122 डिफीटेड, मोहम्मद फिरोज खान 103 डिफीटेड, मोहम्मद जकाउल्ला 77 डिफीटेड. ठीक है. आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज. आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार. नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का मंगलवार एक सभा कर संगठन की शुरुआत की गई. पूर्व भाजपा कर्मी द्वारा पुलिस और मीडिया पर हमला. बुधवार रानीगंज वरोदो में रक्तदान शिविर का आयोजन. बिहार में भाजपा की जीत की खुशी में रानीगंज डॉल्फिन मैदान से एक रैली निकाली गई. रेलवे के निजीकरण के विरोध में इफ्टू ने रेल मंडल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा. आज के लिए बस इतना ही. देखते रहिए पीबी न्यूज. नमस्कार.